features of business environment. So it's the totality of external forces. So you see that I've told you in your syllabus of 12th standard, business environment will be taught only from perspective of external environment, although business environment in reality comprises of internal environment as well, but in your syllabus we have to only study about external environment. So external environment is the sum total of micro and macro factors which will be taught in the next feature of business environment, but let's focus on the first factor as of now. तो एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके आ जाती हैं गवर्नमेंट, आपके कस्टमर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके सप्लायर्स, राइट. सो दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट योर एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट. तो इन सबको सम कर दिया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट. तो इट्स एग्रीगेटिव इन नेचर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it's a sum total of all these forces. Then business environment is comprised of micro and macro forces. So to be very clear, they are external environment forces. Specific forces are the micro ones, general ones are the macro forces. सो बिजनेस इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक जनरल दोनों आ जाते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी डायरेक्टली, जैसे कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके कंपैटिटर्स, आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनसे आपका जो बिजनेस है वो लिंक्ड है और बिजनेस की परफॉर्मेंस इन लोगों की वजह से अफेक्ट होगी. ठीक है, तो ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे क्योंकि कस्टमर नहीं खरीदेंगे तो आपको लॉसेज होंगे. फाइन. सो यू कैन ऑल्सो से कि हाँ इनडायरेक्ट होंगे सम वॉट. इट्स सेम बिकॉज डायरेक्टली ये लोग आपकी कंपनी में तो काम कर नहीं रहे. ठीक है, दे आर नॉट वर्किंग इन योर कंपनी. तो यू कैन आइदर से कि डायरेक्टली भी अफेक्ट करेंगे और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करेंगे. बोथ आर रियलिस्टिक इन दिस वे, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ऑथर्स ऑफ एनसीईआरटी हैव रिटन that they are affecting your business firms directly, so you will say okay, they will affect your performance directly. But if you will see on a wider basis, they are affecting your business directly by not buying your products, by not investing properly, and indirectly your performance is also being affected because of these factors. But if we will move further to general forces, they will affect your business completely on indirect basis, because if people are not buying your people are not in the favor of the product which you are making, then people won't buy it. For some reason, if government is unstable, they are making those policies which are changing on regular basis. Like आज भी एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा देते हैं इस स्टेट में, फिर उन्होंने 2 हफ्ते का फिर लगा दिया. तो इस चीज़ की वजह से सिर्फ आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ की वजह से सबका बिजनेस अफेक्ट होगा. राइट. सो ये जो चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, दे अफेक्ट द बिजनेस इन फॉर्म इनडायरेक्टली. राइट. Then we have interrelatedness. Now you see that if people are not buying products in the marketplace, लोग अगर एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो इससे फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी. तो अगर लोगों का नेचर जो है वो डिमांड के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, दैट दे आर नॉट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स एट ऑल बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, दैट दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. मे बी इकोनॉमी में लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है तो लोग ईएमआई पे कुछ सामान नहीं खरीदना चाहते हैं. सो दिस इज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलॉट. दिस इज अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलॉट, and this is changing the attitude of our society also, that they are not ready to buy products in the market. So economic environment is affecting the living standard of the people. So because of the fact people don't have income, they are not able to spend it on their necessities. So that's why this economic environment is affecting the social environment of our country. Getting the point? Now let's suppose that there is some technological advancement. Let's suppose that in the marketplace a new machine has arrived which has a capacity of producing phones very easily. एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें फ़ोन बनाना बड़ा आसान हो गया है. तो अब जो भी कंपनीज फ़ोन बनाती हैं उन लोगों में बहुत कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि अब अभी तक फ़ोन बनाने का सिस्टम ईजी नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ मशीन्स टुगेदर टू मेक वन पीस ऑफ फ़ोन. बट नाउ लेट्स सपोज दैट टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस टू दैट लेवल कि अब फ़ोन बनाना बहुत आसान हो गया है. तो इस चीज़ की वजह से जो कंपनीज ऑलरेडी फ़ोन्स बना रही है उनके लिए भी एक थ्रेट है, और इससे लोगों का सोशल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हुई. अब सोसाइटी में कुछ लोग होंगे दोज हु विल बी द अर्ली बायर्स, और वो लोग सामान खरीदना चाहेंगे, न्यू फ़ोन खरीदना चाहेंगे. इसके अलावा अब इससे इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि लोग अब फ़ोन खरीद पाएंगे इजीली और अब लोग फ़ोन बना भी पाएंगे इजीली. तो वन टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज़ क्रिएटेड अ चेंज इन social environment also and economic environment also.
सो यू सी दैट इन्वायरमेंट्स आर इंटर रिलेट टू ईच अदर. नाउ लेट्स सपोज दैट अगर लोगों में फिटनेस का क्रेज आ जाए, दैट यू वांट टू गेट फिट, तो ज़्यादातर कंपनीज जूसेस प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी. ऑरेंज जूस, मिक्स फ्रूट जूस, लीची जूस प्रोड्यूस करेंगे. और कंपनीज प्रोटीन शेक्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, मल्टी वाइटामिन का प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, है ना, बाकी के सप्लीमेंट्स का प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, राइट. ऑलिव ऑयल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, है ना. तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इंटर रिलेट टू ईच अदर. अगर एक इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द अनदर एनी अदर इन्वायरमेंट ऑल्सो, है ना. तो एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अब लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ठीक है. पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो लोग ऑन एन एवरेज सर्वाइव करा करते थे वो 44 ईयर्स तक जीते थे. बट आज के टाइम में इंडिया में एक एवरेज पर्सन 70 ईयर्स तक जी लेता है ना. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है इंडिया में, और बाकी कंट्रीज़ में भी अब बढ़ रही है विद मेडिकल एडवांसमेंट. अब लोगों में हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ गई है ना, कि लोगों को अब सॉफ्ट ड्रिंक्स तो देखो यार, मैं तो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, बट एनसीईआरटी ऑथर्स हैव रिटन इट, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू कॉपी पेस्ट इट. बिकॉज इन एनी केस अगर केस स्टडीज में से आ जाती है कि पीपल हैव इंक्रीज डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो यू शुड नो कि वो इंटर रिलेटेडनेस फीचर को हाईलाइट कर रहा है. दैट्स व्हाई रिटन, बट आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स. इट इज़ अगेन इन कॉन्ट्रास्ट टू हार्ड ड्रिंक्स लाइक एल्कोहल. तो उनसे कॉन्ट्रास्ट में लोग सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर कर रहे हैं कि ये थोड़ा कम हार्म करेंगे, बट हार्म तो सर ये भी करेंगे, ठीक है. सो यू कैन से एक बार को बोल सकते हो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि डाइट कोक आती है, तो वैसा एग्जांपल फिर भी एक बार को यहाँ चल जाएगा. बट अगेन नॉट एडवाइजेबल टू कंज्यूम डाइट कोक ऑल्सो. इट अगेन कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर एज वेल. एंड शुगर के अलावा उसमें शुगर वो क्लेम तो नहीं करते हैं, बट उसमें बाकी स्वीटनिंग सब्सटेंसेज होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. Those are again not good for your consumption. Then fat free cooking oil, and in reality there is no oil जो कि fat free हो. Oil का जो main macro nutrient है वो होता ही fat है, but you can say olive oil which reduces your cholesterol, right. On the other hand, if you will consume mustard oil or other vegetable oil, it will increase your low density lipoprotein cholesterol और LDL cholesterol. तो ऑलिव ऑयल की अवेयरनेस लोगों में आ रही है कि हाँ ऑलिव ऑयल यूज़ करनी चाहिए. देन डाइटरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, हालांकि मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ, बट फिर भी वो नुकसान थोड़ा तो कम पहुँचाएंगी जितना नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स पहुँचाएंगी, है ना. एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स, लोग हेल्दी हैबिट्स पे आ रहे हैं कि हाँ जिमिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो ये टाइम से सोना है ना. तो ये सब चीज़ें लोगों में अब आ रही हैं. तो अब आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी आ गए हैं जिससे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना. अब लोगों को मल्टी वाइटामिन्स कंज्यूम करने की इंपॉर्टेंस समझ में आई है. लोगों को अब ओमेगा 6 के टैबलेट्स कंज्यूम करने की इंपॉर्टेंस समझ में आई है. लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने की इंपॉर्टेंस क्लियर हुई है. तो जब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, तभी वो लोग उसकी डिमांड करते हैं. इससे इकोनॉमी में भी अच्छा इंपैक्ट आ रहा है. अब देखो, ये सोशल इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि लोगों को फिटनेस में जाना है. अब इससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कितना इंप्रूव होगा, जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं उनको कितने प्रॉफिट्स होंगे इस चीज़ की वजह से, है ना. आजकल तो कितने सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें सिर्फ हेल्दी फूड मिलता है, और वो लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बाइफर्केशन भी बताते हैं कि इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने फैट्स हैं, इतने ग्राम प्रोटीन है. तो कितना ग्राम कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो बताते हैं. वो मेजर करके फूड को कुक करते हैं, जो कि जो लोग एक्चुअली साइंटिफिक ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग फूड को प्रॉपर रेशियो में ही लेते हैं, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने फैट लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है. और आजकल रेस्टोरेंट्स वैसे ही सर्विस देते हैं. इससे उनको भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो रहा है और सोसाइटी का भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है. तो दोनों इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहे हैं इससे. तो मेन इस पॉइंट का मतलब यही था कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. इफ देयर इज चेंज इन वन इन्वायरमेंट, इट्स वेरी मच लाइकली दैट इट विल अफेक्ट अदर इन्वायरमेंट ऑल्सो. Now next point is dynamic nature. Now we see that people are very dynamic. People are very dynamic. They change on regular basis. Just like people have different priorities at different timings. Just like that environment also changes. ठीक है, कस्टमर आपका सामान आज खरीद रहा है, कल ज़रूरी नहीं है कस्टमर आपका सामान खरीदेगा, है ना. ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपके सप्लायर्स आपको टाइम से रॉ मटेरियल की सप्लाई दे रहे हैं तो वो कल भी देंगे और आगे भी. तो इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है, और ज़रूरी नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है जो आपके फेवर में चल रही है, कल को उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब उससे अफेक्ट हो सकते हैं. फाइन, अब सपोज करो रेस्टोरेंट पे अभी 5% का GST लगता है, अगर वो गवर्नमेंट 12% कर देती है तो रेस्टोरेंट्स की सेल कम हो जाएंगी. सिर्फ आपके रेस्टोरेंट पे फ़र्क नहीं आएगा, जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब पे फ़र्क आएगा. तो इससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी असर आएगा
और सोशल इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क आएगा। लोग भी थोड़ा सा इसका बॉयकॉट करेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, 5% से आप बढ़ा क्यों रहे हो। तो दोनों इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। सोशल इन्वायरमेंट में भी लोग भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे, और ऊपर से इसमें आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट थोड़ा डाउन होगा। और ये जो करा उन्होंने, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, क्योंकि पहले अभी लॉ है 5% का जीएसटी कलेक्ट करना है। अगर वो कल को 12% हो जाता है तो ये उन्हें जीएसटी एक्ट में रेक्टिफाई करना होगा, उसको अमेंड करना होगा, चेंज करना होगा इन सिंपल वर्ड्स, राइट। तो ये एक डायनेमिक नेचर है बिजनेस इन्वायरमेंट, ये चेंज हो सकता है। अब 12% होने को तो हो भी सकता है ना, किसी ने मना तो नहीं करा नहीं हो सकता, बट अगर हो जाता है तो फिर वो इंटर रिलेट कर जाएंगे अलग अलग कंपोनेंट्स। और उसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसा होता रहता है, लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं। आज लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, कल खरीदेंगे या नहीं पता नहीं। अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है जो 5% तक चल रही है, आपके फेवर में है, बट अगर गवर्नमेंट ने 12% का जीएसटी चार्ज करना शुरू कर दिया तो शायद वो पॉलिसी आपके फेवर में नहीं होगी, राइट। तो ये चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती रहती है ना। टेक्नोलॉजी चेंज होती है जिससे लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। अब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अपने साथ लेके आ रहा है, तो लोग वहाँ से शिफ्ट होके इस कंपनी पे आ जाएंगे जिन्होंने कुछ एडवांसमेंट करी, कुछ इनोवेशन करी है ना। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाएंगी, और काफ़ी नए लोग भी फिर बिजनेस में आ जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है। लाइक HYV सीड्स जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में आए थे तो बहुत सारे लोग फार्मिंग में आ गए थे, इवन जो लोग फार्मिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन के बाद काफ़ी लोगों ने एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट दिखाया था। तो इससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट आया था, और सोशल इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया था। देन अनसर्टेनिटी। अब इन्वायरमेंट बहुत अनसर्टेन है, आप एक पॉलिसी बना के बैठ जाओगे, बट अगर कल को गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले लेती है जो आपके पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको फिर अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आपने फोरकास्ट करा था कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट अगर वो नहीं खरीद रहे हैं तो फिर आपको डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, राइट। कि कैसे पॉलिसी को अपग्रेड करें, कैसे मार्केटिंग करें, क्या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस में कुछ चेंजेस करें जिससे लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बहुत अनसर्टेन है। फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्शन 100% तो एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो। और जब इन्वायरमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि देखो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स में आए दिन कितने चेंजेस आ जाते हैं। देन फैशन इंडस्ट्रीज में कितने चेंजेस आ जाते हैं। अब देखो एक कंपनी है जहाँ पर कपड़े बनते हैं, अब उन्होंने कपड़े बना दिए और मार्केट में पहुँचा दिए, बट एकदम से फैशन चेंज हो गया। अब लोगों ने कहा कि हमें कॉलर वाली टी शर्ट्स नहीं, हमें राउंड नेक वाली टी शर्ट चाहिए, लोग ज़्यादा डिमांड वो वाली कर रहे हैं। तो अब कंपनी तो फंस गई, उन्होंने सप्लाई कुछ और करा था, डिमांड किसी और चीज़ की हो रही है। तो इसमें चेंजेस जब ज़्यादा आ जाते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, कैसे आपकी पॉलिसी फ्लेक्सिबल रहे और चेंज हो सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको समझते हो बेसिकली एक बार में, तो आप इसको समझोगे कंपोनेंट्स में कि सोशल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है ना। तो इकट्ठा करके समझा जाता है इसको एक एक करके, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और कंडीशंस डायनेमिक हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक बार में सब कुछ समझ पाओ, तो आपको इसको पार्ट्स में समझना पड़ता है। तो ये एक फिनोमिना है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसको देखो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको एक साथ टोटल में समझते हो, बट इट इज़ ईजी इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट इन पार्ट्स। पार्ट्स मतलब सोशल इन्वायरमेंट को अलग से स्टडी कर लो कि लोगों के क्या प्रेफरेंसेस चल रही हैं, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रखा हुआ है वो लीगल इन्वायरमेंट में देख लो, ठीक है। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन दे रहे हैं, उसको अलग से पढ़ो। तो इकट्ठे तो आप ये सब नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को कंपोनेंट्स वाइज स्टडी करा जाता है, नॉट ऑन एग्रीगेट वाइज, ठीक है। वो होता तो एग्रीगेट ही है, एट द एंड सब कुछ आपके सामने आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा, बट आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की अलग अलग लेवल पे। देन रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रिलेट करते हैं एक एरिया में, एक लोकेलिटी में, एक रीजन में, या मैक्सिमम में कंट्री में। अब इंडिया में अगर लोगों का एटीट्यूड है कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में भी लोगों का वही एटीट्यूड हो, क्योंकि कनाडा में अब इतना ज़्यादा कोविड नहीं है, तो इसलिए अब लोग ऑफलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। बट इंडिया में जो सोशल इन्वायरमेंट है और जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो ऑनलाइन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पर कोविड काफ़ी कंट्रोल में है, मेनली ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह की बात करें, तो वहाँ पर तो मास्क भी बिल्कुल आउट हैं और बहुत सही उनका सिस्टम चल रहा है वहाँ पर।
तो वहाँ पर लोगों का एटीट्यूड इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियाज़ इन्वायरमेंट, राइट। तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एरिया टू एरिया, लोकेलिटी टू लोकेलिटी रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। अब इंडिया में जिन चीज़ों की डिमांड है वो दूसरी कंट्रीज़ में तो ज़रूरी नहीं है ना कि उन चीज़ों की डिमांड हो। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया में लोगों का एटीट्यूड है कि हमें एप्पल का ही फ़ोन खरीदना है, हमें आईफोन खरीदना है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी लोगों का यही एटीट्यूड हो। अब इससे जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो उस पर टिका हुआ है, फाइन। और उस उनके सर्विस सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पर नहीं होती है, राइट। तो उनके सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, जहाँ पर लोगों की जो डिमांड है। अब इंडिया में अगर नो ऑफेंस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर इंडिया में ज़्यादातर लोग बुरखा की शॉप्स खोल लेते हैं तो यहाँ पर इतनी सेल नहीं होगी। और अगर अरेबियन कंट्री में वहाँ पर लोग साड़ी की शॉप खोल लेते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी सेल नहीं होगी, वहाँ तो अलाउड ही नहीं है बाय द वे, ठीक है, वहाँ तो अलाउड ही नहीं है बाय द वे। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट एरिया टू एरिया रिलेट करता है कि किस एरिया में लोगों की क्या सिचुएशन है, किन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं लोग, उसके हिसाब से। तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए की हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है चाइना से और पाकिस्तान से, ठीक है। और जो डिमांड है, सेम एग्जांपल, साड़ी की जो डिमांड है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट आप अगर फ्रांस में जाओगे तो वहाँ पर कौन पूछेगा, ठीक है, इटली में कौन वहाँ साड़ी पहनता होगा, राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में रिलेट करते हैं और उसके हिसाब से कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसको लर्न करने के लिए एक्रोनिम है सिट कर्ट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस है, फिर इसमें आ जाता है आपका इंटर रिलेटेडनेस एंड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी एंड डायनेमिक नेचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का। विद दिस फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ओवर। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।